بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التوابع کل ثان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ۔ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان اسماء مربع کا اعراب بیان کر فارغ ہوئے جن کا اعراب اصلی ہوتا ہے، جیسے مرفوعات ہیں، منصوبات ہیں، مجرورات ہیں، تو اب یہاں سے ان اسماء مربع کا اعراب بیان فرما رہے ہیں جن کا اعراب دوسرے کے تابع ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا۔ دوسرے کا جو اعراب ہوگا ان اسماء کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ ان کو توابع کہا جاتا ہے۔ التوابع یہ جس طرح المجرورات، المرفوعات، المنصوبات کی ترکیبیں تھیں، وہی ترکیبیں توابع کی بھی ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ خبر ہے، مبتدا اس کی محذوف ہے اور اس کا مضاف بھی محذوف ہے۔ عبارت ہے ھذا بیان التوابع، ھذا بیان اعراب التوابع۔ خبر کو حذف کر کے اس کا یعنی جو مضاف خبر تھی اس کو حذف کر کے اس کا اعراب توابع مضاف الیہ کو دے دیا گیا، یا پھر مبنی برضم ہے۔ کل ثان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ۔ توابع یہ تابعن کی جمع ہے، اور تابعن کا وزن ہے فاعلن۔ لیکن پیچھے مرفوع، مجرور، منصوب ان کی جمع مؤنث سالم کے وزن پر لائی گئی تھی، مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ لیکن تابعن مفرد کی جمع مکسر کے وزن پر توابع لائی ہوئی ہے۔ جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر آئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توابع یہ جمع ہے تابعن کی، اور تابعن کا وزن ہے فاعلن۔ فاعلن کا وزن دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً۔ اسم کے لیے استعمال ہو، یا کسی نمبر دو کسی ایسے صفتی معنی پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہو کہ جو کسی نوع کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جیسے طالقن، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، طلاق شدہ عورتوں کے لیے۔ اور قائبن یہ عورتوں کی صفات ہے، وہ قوائبات راوا قائبن آتا ہے۔ تو جو فاعلن کا وزن اسم کے لیے استعمال ہو اس کی جمع بھی فوائلوں کے وزن پر آتی ہے، اور جو فاعلن کا وزن کسی خاص نوع کے وصفی معنی کے لیے استعمال ہو اس کی جمع بھی فوائل کے وزن پر آتی ہے، جیسے توالق ہو، طالق ان کی جمع آتی ہے، اور قائب ان کی جمع قوائب آتی ہے۔ تو یہاں چونکہ تابعن فاعلن کے وزن پر ہے اور اسم کا معنی ہے، اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جو تابع ہو، اس لیے اس کی جمع مکسر فوائل کے وزن پر توابع لائی گئی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف میں توابع کی تعریف کی ہے کل ثان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ، کہ تابع ہر وہ دوسرا ہے جس نے اپنے سے پہلے والے اسم کا اعراب لیا ہو اور دونوں کی جہت اعراب ایک ہو۔ اس میں ثان سے مراد دوسرے نمبر پر ہونا صرف مراد نہیں ہے، بلکہ دوسرا، تیسرا، چوتھا پہلے کے بعد ہونا، پہلے اسم کے بعد آنا ہے، خواہ وہ دوسرے نمبر پر ہو، تیسرے پر ہو، چوتھا ہو، جتنا بھی ہو، جتنے نمبر پر بھی۔ جیسے جانی زید العالم، الفاضل، الادیب، القاری۔ اب اس میں زید پہلا ہے موصوف، اس کے بعد آگے صفتیں ہیں، وہ جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری زید کی صفتیں ہیں۔ العالم ہے یہ پہلے نمبر پر ہے، الفاضل دوسرے نمبر پر ہے، اور اسی طرح الادیب تیسرے نمبر پہ، القاری چوتھے نمبر پہ، المؤذن پانچویں نمبر پہ، الامام، الخطیب، یہ مختلف صفتیں ہیں۔ تو ثانن کا مطلب یہ ہے کہ موصوف کے بعد آئے بس،
ताबे पहले इसम के बाद आने वाला, दूसरे नंबर पर आने वाला वो इसम बेएराब साबिक ही, जो अपने से पहले वाले एराब को भी ले, मिन जिहतिन वाहिदतिन, और एक ही जिहत का एराब भी हो, दोनों का। फिर तवाबे की 5 किस्में हैं: नात, बदल, ताकीद, अतफ बयान और अतफ बिल हरफ। ये 5 किस्में तवाबे की। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इनमें से नात को बयान किया। नात जिसको सिफत भी कहते हैं। अन्नातु ताबिउन यदुल्लु अला मानन फी मतबूइही मुतलकन। यहाँ से तवाबे में से पहला ताबे नात की तारीफ बयान फरमा रहे हैं। नात ताबिउन वो ताबे है यदुल्लु अला मानन फी मतबूइही, जो अपने मतबू में मौजूद माने पर दलालत करे, मुतलकन हर हालत में। यानी अपने मतबू में मौजूद जो हर वक्त, हर सूरत में, हर हालत में माना पाया जाता है, उस माने पर दलालत करे, उस सिफत पर दलालत करे जो अपने मौसूफ में हर वक्त पाई जाती है। ये जो मुतलकन का लफ्ज़ है, ये असल में कैद एहतराजी है। ये बाकी जो तवाबे हैं उन सब को निकालने के लिए, क्योंकि बाकी जो तवाबे हैं वो हर वक्त अपने मतबूब में मौजूद जो मुस्तकिल सिफत होती है, हर वक्त उस पर दलालत, मौजूद सिफत पर दलालत नहीं करते, बल्कि बाद औकात में जो मौजूद होती हैं उन पर दलालत करते हैं। ताबेन यदुल्लु अला मानन फी मतबूही, नात वो ताबे है जो दलालत करे उस माने पर, उस वसफ पर, फी मतबू ही, जो उसके मतबू के अंदर पाया जाता हो, मुतलकन हर हालत में। वफ़ायदतुहु तख़सीसुन औ तौज़ीहुन। यहाँ से मुसन्निफ नात का फायदा बयान फरमा रहे हैं कि नात तख़सीस के लिए आएगी, तौज़ीह के लिए आएगी। वक़द यकुन लिमजरद सनाए अव ज़मन, मुख्तलिफ काम और मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए नात ज़िक्र की जाती है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इनमें से कुछ फ़वाइद बयान फरमाए। फरमाते हैं वफ़ायदतु तख़सीसन, कि अगर मौसूफ नकरा हो, उसकी सिफत लाई जाए तो वो तख़सीस के लिए होती है। यानी रजुलन आलिमुन, यहाँ आलिमुन रजुलन नकरा की तख़सीस के लिए है, क्योंकि रजुल बहुत सारे थे, उसमें तख़सीस कर दी आलिमुन। और अगर मौसूफ मारफा हो, उसकी सिफत लाई जाए तो वो सिफत तौज़ीह के लिए होगी, वज़ाहत के लिए होगी। जैसे जानी ज़ैदुन आलिमो, जानी ज़ैदुन फाजिलो, या फाजिलो ज़ैदुन मारफा की वज़ाहत करने के लिए, और तौज़ीहुन। और अगर मुखातब को मौसूफ के बारे में पहले से पता हो कि ये मुत्तसिफ बिस्सिफ़ात है, इसमें सिफात पाई जाती हैं, फिर भी मौसूफ की सिफात जिक्र की जाए तो कभी सिर्फ और सिर्फ मदह के लिए होती है सिफत। वक़द यकुन लिमजरद सनाए, मौसूफ के सिफात के साथ मुत्तसिफ होने को मुखातब मुतकल्लिम के सिफात जिक्र करने से पहले भी जानता है, फिर भी मुतकल्लिम उसके सामने मौसूफ की सिफात बयान करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मदह के लिए है, सना और तारीफ के लिए, तखसीस तौज़ीह के लिए नहीं है। जैसे बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम, लफ्ज़ अल्लाह के बारे में हर बंदे को ये मालूम है कि वो मुत्तसिफ बिसिफ़ात हैं, लिहाजा उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम ये सिर्फ सना के लिए, मदह के लिए। आवेज़म में, और अगर मुखातब को मौसूफ बिसिफ़ात होने का इल्म हो तो कभी वो सिफत जो होती है वो सिर्फ मुज़म्मत के लिए होती है आवेज़म में। जैसे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें
शैतान के बारे में पहले से मालूम है हर बंदे को कि ये मरदूद है, लिहाजा रजीम की सिफत जो है ये तखसीस या तौसीह के लिए नहीं है बल्कि मजम्मत के लिए। अवे तौकीद है। और अगर मुखातब को मौसूफ के मुत्तसिफ बिसिफात के बारे में, मुत्तसिफ बिसिफात होने के बारे में पहले से मालूम ना हो, बल्कि सिफत वाला माना उसके अंदर ज़िमनी तौर पर पाया जाता हो, तो ये सिफत मौसूफ की ताकीद के लिए होगी। अब एक तौकीद है कि जैसे नफ़हतुन वाहिदतुन, यहाँ नफ़हतुन में वाहिदतुन वाला माना पाया जाता है ज़िमनी तौर पर, इसलिए कि नफ़हतुन इसका माना तो है फूंक मारना, लेकिन वजन इसका है फालतुन, और फालतुन का वजन जो होता है वो एक मरतबा किसी काम के करने के लिए आता है। तो नफ़हतुन का माना होगा एक बार फूंक मारना, तो एक बार वाला माना नफ़हतुन के अंदर ज़िमनन पाया जाता है उसके वजन की वजह से, लिहाजा उसके बाद वाहिदतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, सिफत लाना, ये ताकीद के लिए। अब तौकीद नफ़हतुन वाहिदतुन, इसी तरह जैसे कल अमसुन दाबिरुन का लफ्ज़ जिक्र हुआ था, और इसी तरह क्योंकि अम्स भी गुज़श्ता काल को कहते हैं, दाबिर भी गुज़श्ता काल को कहा जाता है। इसी तरह एक और सिफत है वला तायरिन यतीरु बिजनाहिही, इसमें तायरन कहते ही परिंदों के ये पारों के साथ उड़ने वाले को कहते हैं, और आगे यतीरु बिजनाहिही ये उसकी ताकीद के लिए। वला फस्ल बैन यकुन मुश्तक्कन औ गैरहु इज़ा कान वज़उ लिगर्ज़िल माना उमूमन नहव तमीमियुन वज़ी मालिन औ खुसूसन मिस्लु मररतु बिरजुलिन अय्या रजुलिन मररतु बिहाज़ा रजुलिन व बिज़ैदिन हाज़ा। ये एक इख्तिलाफी मसला है और मुसन्निफ अपने नज़दीक इनके यहाँ जो राजे कौल है उसको बयान फरमा रहे हैं। इख्तिलाफ इस बारे में है कि यही इख्तिलाफ पीछे हाल के बारे में भी गुजरा था, और वहाँ भी मुसन्निफ का यही नज़रिया था जमहूर के मद्दे मुकाबल कि फसल के लिए, ये फसल नहीं सिफत के लिए, नात के लिए मुश्तक होना ज़रूरी है या जामिद भी हाल नात वाक़या हो सकता है। यही इख्तिलाफ हाल में भी था कि हाल के लिए मुश्तक होना ज़रूरी है या जामिद भी हाल वाक़या हो सकता है। तो जमहूर के नज़दीक वहाँ भी यही था और यहाँ भी यही हुक्म है कि सिफत के लिए मुश्तक होना ज़रूरी है। जमहूर के नज़दीक जामिद सिफत वाक़या नहीं हो सकता, और इसलिए कि सिफत जो होती है ये अपने मौसूफ की वजाहत के लिए होते हैं, और वस्फ़ी माना सिफत मुश्तक के अंदर, सिर्फ मुश्तक के अंदर पाया जाता है, लिहाजा जामिद सिफत वाक़या नहीं हो सकता। और जहाँ कहीं जामिद सिफत वाक़या होना मनकूल हो तो वहाँ उसकी ताबील की जाती है। ये जमहूर का मज़हब है। लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हाल की तरह यहाँ भी सिफत के लिए मुश्तक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जामिद भी सिफत वाक़या हो सकती है। इसलिए कि सिफत का मकसद है मतबू में मौजूद वस्फ़ी माने पर दलालत करना, और ये मतबू में मौजूद वस्फ़ी माने पर दलालत करना जिस तरह मुश्तक से होता है, ये दलालत मुश्तक करता है वस्फ़ी माने पर, इसी तरह जामिद भी दलालत करता है, लिहाजा वो मकसूद जामिद से भी हासिल हो जाता है। अलबत्ता मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुश्तक इसके लिए जामिद के सिफत वाक़या होने के लिए कुछ शर्त है। वो ये इज़ा काना वज़्हु लिग़र्ज़िल माना उमूमन, कि या तो इसमें जामिद अपनी वजह के एतबार से अपने तमाम इस्तेमालात, उमूमन अपने तमाम इस्तेमालात में दूसरी चीज के अंदर मौजूद वस्फ़ी माने पर दलालत करता हूँ। इज़ा काना वज़्हु अपनी वजह के एतबार से उसकी वजह हो लिग़र्ज़िन वस्फ़ी माने पर, लिग़र्ज़िल माना वस्फ़ी माने पर दलालत करने के लिए उमूमन अपनी वजह के तमाम इस्तेमालात के एतबार से, यानी वो इसमें जामिद अपनी वजह के तमाम इस्तेमालात में दूसरे इसम में मौजूद वस्फ़ी माने पर दलालत करता हो। जैसे मसलन तमीमीयुन, यानी वो इसम तमीमी से मुराद सिर्फ यही नहीं है
तमीमी से मुराद वो इसम है जिसके आखिर में या निस्बत लगी हुई हो, जैसे तमीमीयुन, बसरीयुन, लाहौरीयुन, पाकिस्तानीयुन, ये सारे के सारे जिसमें या निस्बत लगी हुई होती है, ये अपनी वजह के एतबार से दूसरे में मौजूद वस्फ़ी माने पर दलालत करने के लिए आते हैं, उमूमन आते हैं और तमाम इस्तेमालात में आते हैं। इसी तरह जू का लफ्ज़ है जब साहिब के माने में हो, जैसे जू मालिन है, तो ये भी अपने मौसूफ के अंदर मौजूद वस्फ़ी माने पर दलाल करता है अपने तमाम इस्तेमालात के एतबार से। औ खुसूसन, या अपने बाद इस्तेमालात के एतबार से मौसूफ में मौजूद वस्फ़ी माने पर दलालत करता हो, जैसे मरर तो बेरजुलिन अय्या रजुलिन, ये अय्युन के अंदर होता है। मकाम मदा में लफ्ज़ अय्युन इस्तेमाल और नकरा की सिफत होकर, तो ये बाद हालात के एतबार से नकरा के वसफ को बयान करने के लिए आता है। इसी वक्त में जब मकाम तारीफ हो और वहाँ नकरा की सिफत हो, तो अय्युन का लफ्ज़ सिफत अपने मौसूफ की सिफत के लिए होता है, जैसे मरार तो बेरजुलिन अय्या अय्ये रजुलिन, मैं गुजरा और कामिल मर्द के पास। अय्ये रजुलिन का माना है कामिलुन फिर रजूलियत है, मैं गुजरा ऐसे आदमी के पास से जो मर्दानगी में कामिल था। इसी तरह जब मरर तो बेहाजा रजुले, कि जब इसमें जिन्स किसी मुशार की ज़ात को मुतय्यन करने के लिए हो, जैसे यहाँ है मरर तो बेहाजा रजुले, अब हाज रजुल यहाँ जो है हाजा के मुशार की जिन्स मुतय्यन करने के लिए, मरर तो बेहाजा में इसके पास से गुजरा रजुल, यानी हाजा की जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो रजुल है, इमरातुन नहीं है, मर्द है, औरत नहीं है। तो रजुल इसमें जिन्स है और हाजा के मुशार की ज़ात मुतय्यन करने के लिए। वो भी ज़ैदिन हाजा, या इसमें इशारा आलम की सिफत वाक़या हो रहा हो, तो वो उसकी सिफत होगा, जैसे मरर तो बेज़ैदिन हाजा, या हाजा ज़ैदिन मरफा की सिफत वाक़या हो रहा है। तो इन सारी सूरतों में जो मौसूफ है वो है क्या कहते हैं उसको, जामिद है, जैसे तमीमियन जामिद है, ज़ीमालिन जामिद है, अय्य रजुलिन जामिद है, अर्रजुल जामिद है, हाजा जामिद है इसमें इशारा। तो इन सारी सूरतों में इसमें जामिद सिफत वाक़या हो रहा है अपने, और दो जो शर्त है उसके अंदर वो पाई जा रही है कि या तो तमाम इस्तेमालात के अंदर एतबार से मौसूफ के अंदर मौजूद माने पर दलालत कर रहा हो, या बाद सिफात के हालात के एतबार से मौसूफ में मौजूद माने पर दलालत कर रहा हो। लिहाजा इसमें ये शर्तियों के पाई जा रही है, लिहाजा नकरा क्या कहते हैं उसको, इसमें जामिद सिफत वाक़या हो सकता है, जिस तरह इसमें जामिद हाल वाक़या हो सकता है। वला फस्ला बैना यकुना मुश्तकन, और कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें जब मुश्तक हो, जैसे आलिमुन आकिलुन नीचे तो लिखा है, और गैर या गैर मुश्तक हो यानी जामिद हो। इदा काना वज़ु लिग़र्ज़िल माना उमूमन, जब उसकी वजह उमूमी तमाम इस्तेमालात के एतबार से माने पर दलालत करना है, जैसे तमीमियुन ज़ीमालिन, या खुसूसन बाद हालात के एतबार से हो, जैसे मररतु बिरजुलिन अय्य रजुलिन, कामिल रजुलियत में कामिल आदमी के पास से गुजरा, मररतु बिहाज़ा रजुले, इसके पास से गुजरा यानी मर्द के पास से, बिज़ैदिन के गुजरा, और वो जैद और कोई नहीं है, ये जैद है। वतुसफ़ नक़रतु बिलजुमलतिल ख़बरियति व यल्ज़मु ज़मीरु, इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने आगे और ये आगे अलग है, व यल्ज़मु ज़मीरु, तो सफ़र नक़रतु बिलजुमलतिल ख़बरियति व यल्ज़मु ज़मीरु, इस इबारत में मुसन्निफ़ ने दो कायदे बयान फरमाए। नंबर एक, कायदा नंबर एक ये है कि जुमला खबरिया नकरा की सिफत वाक़या हो सकते हैं। तू सफो नकरा, तो नकरा सिफत वाक़या हो सकता है बिल जुमलतुल खबरिया से, जुमला खबरिया की। नकरा जुमला खबरिया की सिफत वाक़या हो सकता है, ना कि मारफा की। जुमला के साथ खबरिया की सिफत कैद लगाना, ये इसको निकाल देगा।
توصف النکرۃ بالجملۃ الخبریۃ، جملہ خبریہ کے ساتھ معرفہ کو نکال دے گا. جاءنی رجل قام ابوہ، یہ کہنا درست ہے، لیکن جاءنی زید قام ابوہ یہ کہنا درست نہیں ہے. توصف النکرۃ بالجملۃ الخبریۃ، جملہ خبریہ نکرہ کی صفت واقعہ ہو سکتا ہے، تو نکرہ کی کیس سے معرفہ نکلے گا. لہذا جملہ خبریہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے، معرفہ کی صفت واقع نہیں ہوتی. اس لیے جاءنی رجل قام ابو کی عبارت درست ہے، اس میں رجل نکرہ ہے اور قام ابو جملہ خبریہ اس نکرہ کی صفت واقع ہو رہی ہے. اور جاءنی زید قام ابوہ یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ زید معرفہ ہے اور قام ابوہ معرفہ کی صفت واقع ہو رہا ہے، حالانکہ جملہ خبریہ معرفہ کی صفت نہیں ہوتا بلکہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ من حیث الجملہ خود نہ تو معرفہ ہوتا ہے نہ نکرہ ہوتا ہے. البتہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کیا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا صفت اور موصوف میں چونکہ مطابقت ضروری ہے، اس لیے نکرہ کی صفت جب جملہ واقع ہوگا تو موصوف بھی نکرہ، جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوگا، تو موصوف صفت میں مطابقت پائی جائے گی. اور اگر معرفہ کی صفت بنائیں گے تو معرفہ اور موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اس لیے اس کو معرفہ کی خبر نہیں بنا سکتے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ، کہ جب جملہ خبریہ نکرہ کی صفت واقع ہوگا تو اس کے اندر چونکہ جملہ من حیث الجملہ مستقل بنفسی ہوتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حالانکہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے جملے کے اندر جب جملہ ضمیر وہ کیا کہتے ہیں اس کو صفت واقع ہوگا تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جب جملہ خبریہ کے اندر ضمیر ہوگی تو موصوف کے ساتھ اس کو مربوط کر دے گی. وَتُوصَفُ النَّكْرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَّةِ. ایک تیسری بات خبریہ کے لفظ سے مصنف نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جملے کے ساتھ خبریہ کی جب قید لگائیے تو اس سے انشائیہ نکل جاتا ہے، کیونکہ صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کی کسی حالت کی خبر دینے کے لیے ہوتی ہے، اور جبکہ انشاء میں کوئی خبر نہیں ہوتی. تو اگر نکرہ کی صفت جملہ انشائیہ لائی جائے تو موصوف صفت کے درمیان تضاد آ جائے گا. اس لیے نکرہ کی صفت جملہ آتی ہے اور وہ بھی جملہ خبریہ، انشائیہ نہیں آ سکتی، اور جب جملہ خبریہ آئے گی تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے تاکہ موصوف کے ساتھ اس کا ربط ہو سکے. دیکھیں یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جملے کو نکرہ کی صفت لانے کی ایک مطلق بات فرمائی ہے. اس میں اصل میں 4 صورتیں ہیں اس میں، کہ جملہ جو آئے گا اگر یہ معرفہ کے بعد آتا ہے تو یہ حال بنتا ہے، کا جملہ فعلیہ ہو یا جار مجرور ہو، اور اگر نکرہ کے بعد آئے تو اس کی صفت بنتا ہے. اس میں معرفہ کی بھی 2 قسمیں ہیں اور نکرہ کی بھی 2 قسمیں. نمبر 1 معرفہ محضہ، یعنی وہ معرفہ جس میں نکرہ ہونے کا کوئی احتمال نہ پایا جاتا ہو. اس کے بعد جب آئے گا جملہ تو وہ اس کی صفت نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے لیے حال بنے گا. جاءنی زید اور قام ابوہ، اس میں قام ابوہ زید ان کے لیے حال ہے. نمبر 2 اگر موصوف معرفہ ہے لیکن معرفہ محضہ نہیں ہے بلکہ اس میں نکرہ کی
ہونے کی صفت بھی کا احتمال بھی پایا جاتا ہے، مثلا اس کا وہ معرف باللام العاجزہ نہیں ہے، تو اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہوگا وہ اس کی صفت بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر نکرہ محض ہو تو اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ اس کے لیے صفت ہوگا، حال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ نکرہ ایسا ہو کہ نکرہ محض نہ ہو بلکہ غیر محض ہو، اس کے اندر معرفہ کی قریب ہونے کی صورت بھی پائی جاتی ہو، مثلا اس کی صفت لائی گئی ہو، نکرہ مخصصہ ہو، تو اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہوگا وہ جملہ اس کے لیے صفت بھی واقع ہو سکتا ہے اور وہ جملہ اس کے لیے حال بھی واقع ہو سکتا ہے۔ یہ تفصیل ہے جو مصنف نے اجمالاً اس کو ذکر کیا ہے، اور تو سے وہ یہ انشاءاللہ آگے کل پڑھ